السلام علیکم ناظرین، پروگرام نشاندہی کے ساتھ آپ کی میزبان سمینہ وقار۔ ناظرین، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اپنے ملک کو دشمن کی نظر سے بچانا یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ چونکہ ہم ایک زندہ قوم ہے تو ہم اپنے دشمن پہ بھی اسی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں جس طرح سے کہ دشمن ہمارے ملک میں کارروائیاں کرنے سے گریز نہیں کرتا اور بڑا ڈٹ کے کہتا ہے جو ہمارا دشمن ہے کہ ہاں ہم نے کارروائی کی، اپنے جاسوس بھیجے اور کس طرح سے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور پاکستان کی خارجہ پالیسی، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر امریکی خاموشی تشویشناک، اور سی پیک امریکہ بھارت گٹھ جوڑ ہو کیا رہا ہے آخر ہمارے ارد گرد؟ کشمیری حق خود ارادیت کے حامیوں کو دہشت گرد قرار دینا کہاں کا انصاف ہے؟ دفتر خارجہ اور پاک افغان سرحد پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ کس حد تک بہتری کی جانب گامزن ہے اور حکومتی اقدامات کیا ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہمارا ملک ہے اس میں کس حد تک ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور افغان اعتماد سازی کی جو فضا ہے اس کو ہم کس حد تک بحال کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور آخر میں ہم بات کریں گے خلیجی ممالک میں کشیدگی اور پاکستان کا اہم کردار۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ معزز شخصیات جو یہاں پہ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواتی چلوں۔ ڈاکٹر رفعت حسین، ماہر بین الاقوامی امور، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب سعید خالد صاحب، سابق سفیر، بہت شکریہ آپ کا، اور جاوید خان جدون صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ ابتدا کروں گی میں اس بات سے کہ دفتر خارجہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا، اور سب سے پہلے کشمیر پر جو امریکی جو موقف ہے اور اسپیشلی سید صلاح الدین پر پابندی کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے خاصی تشویشناک ہے اور اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ امریکہ کا یہ جو دوگلا رویہ ہے جی، اس نے کس حد تک جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور کیوں یہ دوگلا پن کیا جا رہا ہے؟ صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ جی سمیہ صاحبہ، شکریہ بہت بہت۔ میرے خیال میں امریکہ کی جو پالیسی کشمیر کے بارے میں تھی، ٹریڈیشنل پالیسی تھی، اس کے اندر کچھ تھوڑی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اور خاص طور پہ وہ گروپ، کشمیری گروپ، جو کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن یونائٹڈ جہاد کونسل جس کے سربراہ صلاح الدین صاحب ہیں، اس کے حوالے سے جو انہوں نے ان کو دہشت گردی کا الزام ان کے اوپر لگایا ہے، کیونکہ ان سے حالیہ پاس کے اندر کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس منسوخ کی گئی ہیں جس کے حوالے سے وائلنس کا، کشمیر کے ریلیٹڈ جو وائلنس کا وہ ان پہ الزام لگایا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کو، میں تھوڑی تبدیلی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت آج ہی بلکہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جس میں انہوں نے کنٹیکچوئلائز کیا ہے اور اس بات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ امریکہ کی جو کشمیر کی پالیسی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کوالٹیٹیو چینج آئی ہے۔ انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ ہم نے ان کا نام جو ہے دہشت گردوں کی لسٹ کے اندر شامل کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایک فرد کی بات ہے، وہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ پوری کی پوری کشمیر پالیسی کے حوالے سے یا کشمیر کے اندر جو آزادی کی جنگ لوگ لڑ رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک سو کہ اس سے کوئی اس کاز کو نقصان پہنچا ہے؟ یہ اس طرح سے ان کے اوپر پابندی کا عائد کر دینا اور انہیں یہ کہہ دینا کہ وہ دہشت گردی کے زمرے میں اور اس قسم کی چیزوں میں؟ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا، اور یہ بات اس وقت منظر عام پہ آئی، بلکہ اس مشترکہ اعلامیے میں بھی اس کا ذکر ہے جس کے حوالے سے مودی صاحب وہاں واشنگٹن میں تھے اور بہت سے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ریٹورکل فلرش، اور امریکہ اپنی جو بنیادی پالیسی ہے کشمیر کو ایک تو متنازع علاقہ سمجھتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات جو آج کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کلیریفیکیشن آئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ فارمولیشن استعمال کی ہے کہ دے ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ناٹ دی انڈین ہیلڈ اور کشمیر بینگ کنسیڈرڈ ایز این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا بٹ انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر کی انہوں نے بات کی، جس کے اوپر وہ خاصی بھارت کے اندر بھی لوگ
जो हम सीख पाए कि स्टेट डिपार्टमेंट ने ये फार्मूलेशन क्यों इस्तेमाल किए। लेकिन कतई नजर इस बात के अमेरिका का और अमेरिका का और हिंदुस्तान का जो इत्तेहाद है कश्मीर के हवाले से या खित्ते की अमूमी सूरत हाल के हवाले से, वो हमें मजबूत से मजबूत तर होता नजर आता है। और इसमें मेरे ख्याल में कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, जो कि यूएन के चार्टर के तहत भी आप जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका ये हक बनता है कि वो उनकी इमदाद भी जारी रखें। तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान हैज डन वेल टू आर्टिकुलेट इट्स स्टैंड ऑन कश्मीर कि हम कश्मीरियों को आज़ादी की जंग समझते हैं। और दूसरी बात है कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं उसका नोटिस लेना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने जब वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे तो समझ नहीं आती कि जो अमेरिका की हुकूमत इस मसले पे खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए है। क्या जी आप एग्री करते हैं डॉक्टर साहब की बातों से? और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने भी इस तशवीश का इजहार किया कि क्यों इसके ऊपर अमेरिका जो है वो खामोशी अख्तियार किए हुए, इस क्यों का आपके पास क्या जवाब है? इसको यानी आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अमेरिका की तरफ से फलस्तीनियों के बारे में कोई कलमा खैर नहीं आता और इसी तरह से कश्मीरियों के बारे में भी कोई कलमा खैर नहीं आता। तो ये बड़ी एक सिलेक्टिव किस्म की है उनकी अप्रोच जो है कि और हर सारी दुनिया में वो इंसानी हुकूक के जो इश्यूज उठाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे। लेकिन ये जो दो मेजर केसेस जो हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसमें बहुत ही मायूसकुन है अमरीकी रवैया। और ये कुदरती बात है कि पाकिस्तान परेशान है इससे। वज़ीर आज़म ने कहा है, वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, मीडिया ने कहा है, सब ने कहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ ना कुछ और कोशिशों की ज़रूरत है। कुछ जो सईद साहब ने भी कहा और उन्होंने भी कि नजर तो सबको आ रहा है, इंटरनेशनल पूरी दुनिया भी ये देख रही है, अमेरिका का जो टिल्ट है वो भी सबको नजर आ रहा है कि किस जानिब है। और जिसकी तरफ ये कि वो तमाम आलमी हुकूक का और इंसानी हुकूक का बड़ा अलमबरदार बनता है, अमेरिका सुपर पावर है। तो उस सुपर पावर को क्या फलस्तीन में कुछ नजर नहीं आता, कश्मीर में नजर नहीं आता, जो कि सबको नजर आ रहा है कि नजर नहीं आता। अब उसे तो नजर नहीं आ रहा, हमें क्या करना है उसको ये सब कुछ दिखाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया समीना। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, पूरी सिचुएशन को डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। अगर बेसिकली आप देखें तो मुझे लगता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस रीजन की तरफ उसमें पैराडाइम शिफ्ट आ रही है। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए, पहली बात तो ये कि कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आप साउथ एशिया की तरफ आपकी नई पॉलिसी क्या होगी। इवन उनकी एम्बेसी इन पाकिस्तान भी उनकी तरफ देख रही थी, उनका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको अपॉइंट नहीं किया गया। फिर दूसरा आपने देखा कि एफपाक उनका जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको जब उन्होंने ओहदा छोड़ा तो उसकी रिप्लेसमेंट अब नहीं आ रही। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है बढ़ाना चाहते हैं। उनकी जो नाकामियां अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा कि आज तालिबान जितने ताकतवर हैं, जितने रिसर्जेंट हैं, इतने कभी भी नहीं थे। जब 150,000 ट्रूप्स मौजूद थे तब भी अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज था और आज तो उनकी 8,000 से ज्यादा फोर्सेज वहां मौजूद नहीं है। 3,000 के लगभग फर्दर वहां पे फोर्सेज को भेजने का उन्होंने अंदिया दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये नजर आता है कि पाकिस्तान तो एक रोल उसका है, उसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन चीन के, रूस के बढ़ते हुए जो असर रसूख है इस रीजन के अंदर, उनका जो किरदार है जो प्ले करना चाहते हैं खासतौर पर अफगानिस्तान में अमन के लिए, वो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उसको अच्छी नजर से देख रहा है। अब सीपैक भी उसका एक हिस्सा है। अभी आपने देखा कि रिसेंट पास्ट में रशियंस ने अपना जो रोल है, किरदार इस रीजन में खासा उसको उन्होंने ऑगमेंट किया। बिल्कुल, इस हवाले से मैं जरूर उसमें आपको शामिल करूंगी और आपकी राय भी उस हवाले से लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि पहले कश्मीर के ऊपर हम थोड़ा सा मैं उस तरफ आ रहा हूँ। कश्मीर में समझता हूँ कि इंटरलिंक्ड है उनकी ओवरऑल जो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम आइसोलेशन में कश्मीर को नहीं देख सकते। कश्मीर में जो इंडियन स्टेट टेररिज्म है वो अमेरिका को क्यों नजर नहीं आता। यूज ऑफ पैलेट गन्स हमने देखा और उनके अपने अखबारात बड़े इन्फ्लुएंशियल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने भी जिक्र किया कि ये बड़ी जाती है, बड़ा जुल्म है, इस अंदाज से ताकत का जो इस्तेमाल वहां पे हो रहा है। उसके बारे में पहली दफा ये हुआ और ये कहा गया फर्स्ट टाइम कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है। इससे पहले आप जानती हैं हमेशा ब्लेम पाकिस्तान पे डाला गया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद
بالکل جسے کہتے ہیں ہی ٹرنڈ ہز بیک ٹورڈز دس ریجن. اب مودی کا آپ دیکھیں کیونکہ آپ نے کشمیر کی خاص طور پہ بات کی, مودی کا وہاں پہ جانا پہلے کہا گیا کہ لو کی وزٹ ہوگی. امریکن میڈیا نے اس وزٹ کو ڈسکرائب کیا کہ لو کی, لیکن ریڈ کارپٹ ویلکم دیا. اور پہلے ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں جن کو ڈنر کے اوپر انہوں نے وہاں پہ انوائٹ کیا اور وہاں پہ ان کی غالباً 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات مجھے لگتا ہے اوپن میسج ہے. ابھی دیکھیں سمینا 2-3 دوسری ڈیولپمنٹ بھی تو دیکھ لیں. پاکستان اس جو جنگ ہے دہشت گردی کی, فرنٹ لائن اسٹیٹ 70,000 سے جانے زیادہ ہم نے قربان کی سویلینز کی اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے. ہم نے جب ڈرونز مانگے ہمیں وہ ٹیکنالوجی ڈینائی کر دی. اب انڈیا دیکھیں 22 ڈرونز اسی کا ورژن, نیول ورژن پریڈیٹر کا $2 بلین کا ان کو پلیٹر پہ رکھ کے دے دیا انہوں نے. اب دیکھیں F-16 میکڈونلڈ ڈگلس نے اور ٹاٹا نے اگریمنٹ کیا, اس کی پوری اسمبلی لائن شفٹ ہو کے وہاں پہ امریکہ جا رہی ہے, اب انڈیا میں جا رہی ہے. پاکستان کا مین اسٹے آپ کی ایئر فورس کا اس وقت F-16 ہے. آپ کے اسپیئرس کدھر سے آنے ہیں, یہ فیوچر میں اس کو یہ بھی تو پالیسی میں دیکھنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کی کوئی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اب نظر نہیں آتی. جیسے کہتے ہیں کٹ لوز اینڈ رن, انہوں نے افغانستان میں وہ کیا. وہ دیکھیں سمینا 2 دفعہ ہوا. پہلا بیٹریل ہوا جب سوویت یونین وہاں سے ودرا کیا, انہوں نے ریجن کو دے لیفٹ دا ریجن ہائی اینڈ ڈرائی, اس کے بعد وہ بھاگے یہاں سے. ابھی آپ دیکھ لیں انہوں نے جب سے فوجیں وہاں سے ودرا کی, جب تک ان کی 1,50,000 آرمی اور نیٹو کے ٹروپس وہاں پہ موجود تھے, پاکستان کی ان کو ضرورت تھی. یہاں سے ان کی سپلائز جا رہی ہیں, نیٹو کی تمام چیزیں یہاں سے, ویپنز جا رہے ہیں, کھانا جا رہا ہے, پینا. پاکستان کی جو سروسز پرووائڈ کی جس کو کہتے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ, آج اس تک کو روکا جا رہا ہے. $300 ملین پہلے روکے گئے, ابھی پھر سے وہاں سے انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ ہمارے پیسے روکے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہولسٹک اپروچ ہے ریجن کی طرف, اس میں کشمیر بھی شامل ہے, اس میں پاکستان انڈیا ریلیشن بھی شامل ہے اور پاکستان افغانستان ریلیشن بھی شامل ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا اس سے پہلے کہ آپ شفٹ کریں, میرا خیال ہے کہ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. آرتھوڈاکس فارن پالیسی اب نہیں چلنے والی. جو چینجنگ سچویشن ہے, ہمیں جب ری الائنمنٹس نظر آ رہی ہیں ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہم زیادہ پروڈکٹیو. یہ جو انہوں نے بات کی جی بہت اوپن, ایک چیز ہمیں نظر آ رہی کہ بھارت اور اپنا امریکہ کا گٹھ جوڑ, اور اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ افغانستان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان, چائنا اور افغانستان کے معاملے میں ہم اس کو ساتھ لیے ہوئے ہیں, ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ جو بن رہی ہے ایک سچویشن پلس رشیا, اس سچویشن کو آپ آگے چل کے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا اوپنلی بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے اور انڈیا وہاں افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی بھی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب چائنا اور انڈیا جو بارڈر ہے اس کے اوپر بھی کشیدگی جو ہے وہ شروع کر دی. جی وہ خاص طور پہ جو سکم کے حوالے سے جو بارڈر ہے اس کے اوپر انڈیا اور چائنا کے درمیان, میں رفٹ تو نہیں کہوں گا لیکن ایک چپکے چل رہی ہے, کیونکہ انڈین یہ کلیم کرتے ہیں کہ چائنا نے جو روڈ کنسٹرکشن ان کے سکم کے ایریا میں کی ہے وہ ان کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تو اس کے مقابلے میں چینیوں نے اب اپنے میپس پرانے نکال کے انہوں نے شو کیا کہ یہ علاقہ کبھی بھی وہ انڈیا کے قبضے میں نہیں تھا. تو وہ تو ایک کشمکش چل رہی ہے. لیکن میرے خیال میں جو نیا فیکٹر ہے اس جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ کی جو بات اب ہم کر رہے ہیں, اس کے اندر چائنا کا ایک اسرٹیو رول ہے کشمیر افغانستان کے حوالے سے. اس کے اندر وہ انہوں نے SCO کے موقع کے اوپر وہ انہوں نے دونوں ممالک یعنی افغانستان اور پاکستان کی لیڈرشپ کی ملاقات بھی کروائی اور سمجھوتا بھی کروایا. اور ابھی چین کے وزیر خارجہ وینگ پاکستان آئے ہوئے تھے, تو پھر 7 نکاتی جو ایک مشترکہ اعلامیہ کا ذکر ہوا اس کے حوالے سے جوائنٹ میکنزم بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل میکنزم کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو سرحدی تنازعات ہیں ان کا حل کرنے کے لیے بھی ایک بھرپور کوشش چائنا کر رہا ہے. تو چائنا کا بیکاز چائنا کے اندر یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ جب تک پاکستان اور خاص طور پر افغانستان میں یہ خانہ جنگی کی صورتحال رہتی ہے اور طالبان نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر نہیں آتے ہیں, تو اس وقت تک علاقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو وہ امریکہ جو کچھ بھی کرے وہ اپنی فورسز کو آگمنٹ کرے, وہ اپنا پارٹنرشپ کرے کر رہی. یہ جو امریکہ اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے افغانستان میں, اور افغانستان میں پاکستان چاہتا ہے کہ امن عمل بحال ہو, تو کیا آپ
آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کے گٹھ جوڑ کے ہوتے ہوئے یہ ہم ممکن ہو پائے گا یہ؟ دیکھیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو یونٹی گورنمنٹ اس وقت افغانستان کے اندر ہے وہ ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان از مور پارٹ آف دی پرابلم دین پارٹ آف دی سولوشن. یہ حقیقت کے برعکس ہے، لیکن ان کے یہاں ایک پرسپشن جو ہے وہ اتنی دور سے موجود ہے، اور اس پرسپشن کو ری انفورس کرنے کے لیے ہندوستان کی افواج بھی موجود ہیں. ہندوستان کے اکنامک اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو 5 ارب کی جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے حق میں یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی امن کی خواہش ریجن کے اندر یا چائنا کے حوالے سے ہو وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان اور یہ سمجھتا ہے، اور میرے خیال میں صحیح سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرل تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ہندوستان کسی نہ کسی طریقے سے ان کی راہ میں روڈیٹ کرتا رہے گا اور اس کو جو ہے اس کو فلیر اپ کی طرف. یہ جس طرف توجہ دلائی انہوں نے، کیا چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کس حد تک پاکستان کو یہ ایک ایج حاصل ہے کہ چائنا اس کے ساتھ ہے، لیکن اگر دوسری طرف امریکہ اور انڈیا مل کے افغانستان کے اندر ہیں اور افغانستان کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو افغانستان اور پاکستان کو قریب کرنے میں چائنا کا رول کس حد تک ہوگا؟ چائنا تو چاہتا ہے کہ ادھر امن ہو پائے گا ان کے نہیں ممکن، یعنی مشکل اس لیے ہے کہ جیسے ہی پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کرتا ہے کوئی، تو باقی وہ دونوں جو ہیں ادر ٹو وہ پھر آ جاتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے. تو یہ اور اس میرے خیال سے اس میں سب سے بڑی بات جو ہے سی پیک اس وقت جو ہے ایک ایسا بڑا معاہدہ ہے جو چائنا بھی چاہتا ہے کمپلیٹ ہو، پاکستان بھی. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ امریکہ کسی غلط طرف نہ چلا جائے اور پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. اس کو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں بہت پاورفل لابینگ کی ضرورت ہے امریکہ میں، کانگریس کے اندر، تھنک ٹینکس کے اندر جو بھی ہیں، مطلب سرکل جو ہیں آفیشل ہیں، اور ہمارا کوئی لابیسٹ نہیں ہے امریکہ میں پچھلے کئی سال سے. یہ چیز بار بار آتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو لابینگ جو ہے یہ امریکن سسٹم کا ایک حصہ ہے. وہاں پہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ نے کسی کو انگیج کیا ہے اور وہ آپ کے بہاف پہ جا کے وہ ان سب لوگوں سے مل کے وہ آپ کا کیس پریزنٹ کریں. اسی طرح کشمیر پہ لابینگ ہو سکتی ہے، کشمیریوں کا کیس پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ مجھے نظر آ رہی ہے کمی. اور آگے جو اس سائڈ پہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنی توجہ دینی چاہیے. ہمارے آگے جو یعنی آنے والا ہے نا پیریڈ، اس میں ہندوستان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروا دو اور میجر کروا دو اور ریسٹرکشن لگوا دو. ہمیں اس کے لیے پلان کرنا ہے. یہ تو ایک ہو گئی بات جی لابنگ. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ لابنگ کی ضرورت ہے تاکہ امریکہ کو، اگر انڈیا پوری طرح لابنگ کر کے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اپنے سائڈ پہ لے جائے اور خدا نخواستہ پاکستان کو اس سے کوئی نقصان ہو، ایک تو یہ چیز، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ڈو یو تھنک، کیا آپ اس فینومین سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت مل کر جو سی پیک ہے وہ چبھ رہا ہے بڑی شدت سے ہمارے دشمن کو، اس کے خلاف کوئی سازش بنا رہا ہے کہ اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے؟ یہ بالکل سمینا درست بات آپ کی، اور میں بڑے ادب سے تھوڑا اختلاف کروں گا امبیسڈر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی اور سم پہ چلا نہ جائے. امریکہ جا چکا ہے، انہوں نے اپنا ڈیسیژن دے دیا ہوا ہے، بڑا کلیئر ہے. اگر ہم کسی خواب کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ہمیں کوئی اسے روک نہیں سکتا خواب دیکھنے سے. دیکھیے بڑی کلیئر ری الائنمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ڈیسیجن میکنگ کیسے ہو رہا ہے امریکہ میں. اس وقت جو افغانستان کا تمام ڈیسیجن ہے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے جنرل میٹس کو جو ڈیفنس سیکرٹری ان کو، جنرل میک ماسٹر جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کو، اور جنرل جان نکلسن کو، یہ ڈیسیجن میکنگ انہوں نے ان کو دے دی ہوئی ہے کہ آپ کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی اسٹیٹ کر دیا کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ انف.
मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब वक्त पे जनरल बाजवा साहब ने स्टेटमेंट जो दी, मेरा ख्याल है उसने अफगानिस्तान का जिक्र किया, लेकिन उनका इशारा अमेरिका की तरफ भी था कि अब डू मोर का वक्त दूसरी तरफ से आ गया हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। एक तो हम बड़े अपॉलोजेटिक अप्रोच रखते हैं, हमने 70,000 कुर्बानियां दी, हमने जंग लड़ी, जीती। देखिए पहली बात तो ये कि हम क्यों शाय हैं इस बात करने में कि हमने वो काम किया ट्राइबल एरिया में जो मेरा ख्याल किसी और मुल्क ने अपने मुल्क के अंदर भी नहीं, अमेरिका नहीं कर सका। आज देखें 15 साल गुजरने के बावजूद ओवर $1 ट्रिलियन स्पेंट ऑन द वॉरफेयर इन अफगानिस्तान, आपने वहां से नाकामी के बाद निकले और आज उनका मीडिया, उनके डिसीजन मेकर्स एंड पॉलिसी मेकर्स एडमिट करते हैं कि स्टेलमेट है। अब अगर आप उसको ड्रॉ कह रहे हैं, लफ्ज ड्रॉ का यूज किया जा रहा है, तो ये फेलियर भी तो क्या है? हमें क्या मिला? हमने फ्रंट लाइन होके दहशतगर्दी का मुकाबला, हमने जंग में अपनी कीमती जानें झोंकी, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे लोग, हमने सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद तो फिर हमें तो कोई एक लाइन हमें भी ड्रॉ करनी है। आप अगर रिकॉल करें, जब पाकिस्तान ने अलायंस किया अमेरिका के साथ इन द वेक ऑफ 9/11 और हम गए, उन्होंने कार्पेट बॉम्ब किया अफगानिस्तान को। उन अफगानियों को जिनका 9/11 से कोई ताल्लुक नहीं था, तमाम के तमाम लोग जिन्होंने ट्विन टावर्स को हिट किया सऊदीज थे, ना वो पाकिस्तानी था ना अफगान था। एक इस प्रिटेक्स्ट पे कि उसामा बिन लादेन उसको पनाह दिए, अफगानिस्तान को तबाह किया। हमने उनकी जंग का हिस्सा बने, कहा जाता है हमारी अपनी जंग थी। ये जंग तो आपकी बनी है 2006-2007 के बाद, जब आपके ऊपर ब्लो बैक आया। अब मुझे बताएं, एक आप देखिए, अगर रिकॉल करें स्टेटमेंट जनरल मुशर्रफ की, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हमने इसलिए अलायंस किया कि इंडिया ये रोल न ले ले। अब हुआ क्या? 15 ईयर्स डाउन द रोड इंडिया वहां बैठा हुआ है, पाकिस्तान उस मुल्क से बाहर है। इंडिया उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिक्टेट कर रहा है। उनकी एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NSC मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। हमारी अप्रोच फ्लॉड अप्रोच थी उस वक्त की, और आज भी मैं समझता हूँ कि हम ये सोचने पे मजबूर नहीं है। जो आप ये जदून साहब ने एक बात की कि किस तरह से हम जो है मौजूद, अगर हम अमेरिका की उस वक्त हाँ में हाँ ना मिलाते तो क्या होता, और अगर हमने उनकी हाँ में हाँ मिलाई तो फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं। तो इट्स मीन कि क्या उसने ये तय कर लिया हुआ है कि हमसे सिर्फ काम लेना है और हमारा साथ किसी मौके पे भी नहीं देना, या नहीं इसके पीछे कुछ और है? मैं बड़ी माजरत चाहती हूँ, सवाल आपके सामने रख के जा रही हूँ। सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमें टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मेरे ख्याल से पहले उनसे हम बात कर लें, जनरल क़य्यूम साहब से, और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच क़य्यूम साहब, आपने हमें वक्त दिया। चूंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी चीजें कि वजीर आजम साहब का जो दौरा था, जो वो गए वहाँ पे दफ्तर खारजा, और वहाँ पे एक अच्छी जो मीटिंग है वो उन्होंने चेयर की, हेड की, और उसके हवाले से कि खारजा पॉलिसीज के अंदर हम किस हद तक बेहतरी ला सकते हैं, और उसके अंदर जाहिर है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का रिलेशन, प्लस अमेरिका और इंडिया का जो गठजोड़ है वो, और उसके साथ साथ चाइना एंड पाकिस्तान अमन को आगे लेके बढ़ना है अफगानिस्तान में। इस हवाले से यहाँ पे डिस्कशन ये हो रही है कि शायद हमारी पॉलिसीज जो हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमने बहुत कुर्बानियां भी दी, फ्रंट लाइन होके हमने जंग लड़ी, अमेरिका ने यहाँ पे उसके कहने पे बहुत कुछ होता रहा, लेकिन आज हमें वो सब कुछ नहीं मिला। तो क्या हमारी खारिजा पॉलिसीज कमजोर थी, या फिर सुपर पावर ने, अमेरिका ने ये सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए सिर्फ उसने हमें डू मोर ही कहना है? देखिए, इसमें दोनों चीजें शामिल है मेरे ख्याल में। देखिए, एक तो फॉरेन पॉलिसी में तो कोई लिमिट नहीं है कि उसमें कितना डायनामिज्म हो, आप पूरी एफर्ट करें, वो तो जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, आपको वो एफर्ट करनी है। लेकिन जो मौजूदा हमारे खिलाफ प्रेशर्स क्रिएट होते हैं या हो रहे हैं, उनकी वजह ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, उसकी वजह ये भी है कि दूसरे उनके अपने मफादात हैं। और आपको पता है, और आपके पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत सलाम भी पेश करता हूँ, और ये बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड कि जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी ना, तो दो बड़े ग्रुप सामने आए, वार्सा पैक्ट और नेटो। उसके बाद जब सोवियत यूनियन की डिमाइस होगी तो फिर ये कोल्ड वार खत्म हुई तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। अभी ये तीसरी फेज है 21वीं सदी की बिगिनिंग में, अभी ये ट्रांजिशन हो रही है अगेन, और एक यानी यूनिपोलर वर्ल्ड को जो होल्ड कर रहे हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो इसी स्टेज के ऊपर ऐसे ही चले। लेकिन जो और पावर्स एमर्ज हो गई हैं, लाइक चाइना जो इकोनॉमिकली सेकंड जो स्ट्रांगेस्ट वर्ल्ड पावर बना है, और रशिया जो थोड़ा सा भी संभल के
तो अपने पांव पे खड़ा होके कुछ डिफाइंस के रोल में आ रहा है, स्पेशली यूरेशिया के अंदर, यूक्रेन में, क्रीमिया में क्या हुआ, और वो थोड़ी सी आंखें दिखा रहा है। तो इससे, और प्लस एक अमेरिका जवाल पजीर है अपने तौर के ऊपर, और उसके ऊपर तुर्रा ये कि एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, ऊपर ट्रंप सब आ गए जिनको स्टेट क्राफ्ट का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, और टिपिकली वो एक बिजनेस लाइन को लेके आगे चलते हैं, और वो जो डिप्लोमेटिक जो सेंसिटिविटीज हैं, जो डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिक्स, उससे ऊपर होके वो अपनी सोच के मुताबिक, जिसके अंदर अमेरिका के अंदर भी दो ग्रुप्स बने हुए हैं। तो मैं कहता हूँ इन हालात के अंदर पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट, एक पिवटल कंट्री, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी जो है, जहां ये गेटवे है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का, जहां एक तरफ इंडिया है जो हमारे वजूद से इनकारी है। हमने इंडिया के साथ हमारा कोई ये झगड़ा कल का या परसों का या ये कोई बॉर्डर का किसी पोस्ट का झगड़ा तो है नहीं, ये तो राइट एट दी आउटसेट है, और इंडिया को ये तवक्को थी कि पाकिस्तान तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और उन्होंने अब हमारे ऊपर हमला और जारियत भी की, जंगें भी लड़ी गई। तो ये मखसूस हालात हैं जिनमें पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आई है, सिविल या मिलिट्री, उनकी कंस्ट्रेंट्स भी थी। यानी उनके ऊपर जब अफगानिस्तान ने अंदर फैसला कर लिया अमेरिका ने आने का, और वो हमसे पूछ के तो नहीं आए, और अगर हम कहते कि नहीं आए तो वो फिर भी उन्होंने तो अपना एक सोचा हुआ था, उनकी आंखों में चर्बी चढ़ी हुई थी, इधर खत्म नहीं किया। सेनेटर साहब एक सवाल यहाँ पे हुआ, सईद खालिद साहब साबिक एम्बेसडर, उन्होंने ये कहा कि शायद अमेरिका के हवाले से हमने अपनी लॉबिंग, क्योंकि वहाँ पे लॉबिंग को बुरा नहीं समझा जाता, इंडिया जो है वो वहाँ पे लॉबिंग कर रहा है और हर तरीके से उसकी कोशिश है कि अमेरिका को अपनी तरफ करे, हम उस तरह की लॉबिंग नहीं कर सके, उसकी जरूरत है करने की। लेकिन उनके जवाब में हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट ने ये कहा कि अब ऐसी लॉबिंग, मैं बड़ी माजरत के साथ उनसे इख्तलाफ करता हूँ कि अब लॉबिंग की गुंजाइश नहीं, उनका एक ओपन स्टांस जो है वो सामने आ चुका है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं खालिद साहब की बात से मुत्तफिक हूँ इस हद तक कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हुकूमतें हैं हमारी, वो उस तरह से इफेक्टिवली वहां चूंकि बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई है इजराइल ने और इंडिया ने, और उनकी लॉबियिस्ट हैं, बहुत सा कुछ पे किया हुआ है, हमारी तरफ से भी एफर्ट होती रही है हर फॉरेन। मैं खुद 3 साल एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी विद 2 प्राइम मिनिस्टर्स, और मैं बहुत सी व्हाइट हाउस में भी मीटिंग्स अटेंड की। अभी आप देखें, जब हमने F-16 लेने थे बिल क्लिंटन से, कांग्रेस के अंडर प्रेशर था, और मेरे सामने उन्होंने कहा जी कि देखिए बात यह है, ना आपको जहाज मिल सकते हैं ना पैसे मिल सकते हैं वापस, बल्कि जिन हैंगरों में जहाज खड़े हैं उनका किराया भी आपको देना होगा, और बाद में जब पैसे देने की कहा तो उन्होंने कहा या गंदम ले लें या सोयाबीन ले लें, पैसे भी नहीं मिलेंगे। आप ये देखिए कितना अनरीजनेबल एटीट्यूड है, और उनकी अपनी अनरीजनेबल एक्शन से क्या मैसेज लेते हैं आवाम को, क्या मैसेज मिलेगा इससे? देखिए, अवाम को ये मैसेज मिलेगा कि सुपर पावर्स जो है उनके अपने मफादात हैं। एक वक्त में सोवियत यूनियन हमारे हर कश्मीर के ऊपर जो रेजोल्यूशन था उसको वीटो करता था। आज जब इंडिया उधर अमेरिका की गोद में, और अमेरिका उनसे दूर था, इंडिया अमेरिका से दूर था, अब जब वो सबसे बड़ा बायर बना है तो रशिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ग्लोबल और रीजनल डायनेमिक्स चेंज होती रहती हैं, और अलाइनमेंट्स यहाँ भी नई बनती जा रही हैं, और उन अलाइनमेंट्स के अंदर बड़ा सेंसिटिव है, और जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं फॉरेन ऑफिस में बड़ा अच्छा किया है, और बहुत सी गाइडेंस वहां चाहिए, एक विजन चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जॉइंट सेशन में इस पे डिस्कशंस होनी चाहिए, और फिर नितर के ये रिकमेंडेशंस आए कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान को फूंक फूंक के कदम रखने, और आपको ये देखना है कि हमारी अफगानिस्तान से भी हम दोस्ती की कोशिश करते हैं, इंडिया के साथ भी हम एंगेज, हम कहते हैं कि आप बॉर्डर के ऊपर ब्रिजेस बने, और हम आपस में बैठ के जो पॉलिटिकल मसाइल हैं पॉलिटिकली हल करें, हम मिलिटरीली ना करें। लेकिन ये तो ताली एक हाथ से तो नहीं बजेगी, तो दैट इज द रीजन कि हमें एक एग्रेसिव
लॉबिंग एक बहुत बड़ी सफारतकारी के लिए बहुत यानी सारे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, और प्लस ये इकोनॉमिक्स का जो जियो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक रेलेवेंट कंट्री हैं बिकॉज हम गेटवे है टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और चाइना ने ये जो अभी इनिशिएटिव लिया है जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI जिसको कहते हैं या ओबोर किसके कहते हैं, इसके अंदर पाकिस्तान का CPEC एक पिवटल है जो बाईपास करता है चाइना की जो इंसर्टलमेंट है, चाइना को मौका देता है कि उसको बाईपास करके अरेबियन सी में आए। सेनेटर साहब मैं चाहूंगी कुछ देर आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर और मौजूद रहिए। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन मैं ब्रेक की जानिब बढ़ती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा था और उसी का जवाब सेनेटर साहब से लेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अब रहिए बाखबर, ताजा, मोतबर और मुस्तनद खबरों से। तफरीह तबाह पर मबनी मालूमात सिर्फ PTV के मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट से मुंसलिक हो जाएं, जो फर्क वाज़ेह कर देगा। काबिल एतबार ज़राए और गैर तस्दीक शुदा मवाद के दरमियान आइए राबते करें मजबूत। PTV कौम की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूं कि उसका भी जवाब मिले ताकि हम सेनेटर साहब से इस हवाले से जवाब ले पाएं। इसमें दो चीजें हैं जो कि मैं चाहूंगी कि हुकूमती मौक़िफ़ भी आए, उनकी जानिब से भी ये बात सामने आ जाए। अमेरिका के साथ रिलेशंस के हवाले से तो बड़ा मुफस्सल जवाब उन्होंने दे दिया। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं कि जो CPEC को कामयाबी से हमकिनार करना चाइना के साथ और विद अफगानिस्तान, रशिया, ये दूसरी कितनी स्टेट्स जो हैं वो अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है मे बी वी आर रॉन्ग, लेकिन इंडिया के हवाले से तो हम 100% श्योर हैं कि वो नहीं चाहता CPEC का होना, लेकिन क्या अमेरिका भी इसमें उसके साथ शामिल? देखिए, अमेरिका ने बहुत साल पहले जब हिलरी क्लिंटन उनकी वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने एक सिल्क रोड का इनिशिएटिव एक लिया था जो कि उस वक्त के मुताबिक बहुत सारे लोगों का ख्याल था, क्योंकि CPEC मंजर आम पे नहीं आया था, तो उनका ख्याल ये था कि अमेरिका उस सिल्क रोड के इनिशिएटिव के हवाले से तमाम ममालिक को, जिसके अंदर पाकिस्तान खास पे मौजूद नहीं था और हिंदुस्तान मौजूद था, और वो उसके खिलाफ वो इकट्ठा करेगा। लेकिन जब CPEC आया तो वो फिर एक रुझान ये चला कि सारे के सारे ममालिक जो हैं उनकी तवज्जो CPEC और जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हवाले से होगी, जिसका सिर्फ तल्लक एशिया के साथ नहीं है बल्कि यूरो एशिया के साथ है, अफ्रीका के साथ है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके हवाले से जो चीनियों ने अभी जो पिछले मई के अंदर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, तो भारत ने उसका बायकॉट किया था, और उस बायकॉट के नतीजे में वो मोदी हुकूमत के इस फैसले के ऊपर अंदर से, इंडिया के अंदर से बड़ी तनकीद आई कि ये ओबोर को आपने उसका बायकॉट करके आपने योर शॉट योरसेल्फ इन द फुट। तो मेरे थिंक कि वो भी है अमेरिका का भी इसके अंदर। देखिए, अमेरिका का जो हमें खिदशा है कि अमेरिका शायद भारत के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है, वो इंडो US जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर भी उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल CPEC के बारे में की है जो कि हिंदुस्तान ने ओबोर के इनिशिएटिव में ना जाने के हवाले से इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा था जी कि ये जो नेशनल सॉवरेंटी का होना चाहिए और वो ओपन जो है वो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका ये ज़ाहिर अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि चाइना एक उभरती हुई ताकत के हवाले से उसके रोल को चैलेंज करे, लेकिन मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ज्यादा खौफ है क्योंकि हिंदुस्तान के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ज्यादा। दूसरी चीज जो मैं चाहती हूँ, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि सारी चीजों का अहाता कर सकूं, अफगानिस्तान के हालात में खराबी की वजूहात जो हैं, क्या वो अफगान तालिबान और TTP या दाइश का बढ़ता हुआ असर रसूख है या नहीं,
उसके अलावा जो इंडिया वहां पे कर रहा है, पाकिस्तान को किसी तरीके से उस रास्ते से तंग करना, ये वजह है कि वो भी नहीं चाहता ऐसी लॉबिंग कर रहा है कि अफगानिस्तान से हम दूर रहे, या ये जिनका मैंने नाम लिया तालिबान या TTP या दाइश, इसका बढ़ता हुआ जो असर रसूख है वो भी आप समझ। लेकिन ये तो हालात जो है ना ये चलते रहेंगे ऐसे ही। अफगानिस्तान में कोई ऐसा कोई तब्दीली आने की फिलहाल तो आपको नहीं है। ये तालिबान लड़ते रहेंगे, वो काबुल को डिफेंड करते रहेंगे, अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहेगा, इंडिया उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में दरअंदाजी करता रहेगा। तो ये सिलसिला एक चल रहा है। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि ये सिलसिला जो है इसमें कोई तब्दीली आ जाएगी। अब चीनी वज़ीर ख़ारजा आए, वहां भी गए, इधर भी आए, उनसे दोनों से बात की है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इसमें कोई मुमकिन नहीं है, मुमकिन है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सेनेटर साहब, आपसे एक लास्ट सवाल मैं ये करना चाहूंगी, फिर मैं चाहूंगी कि मैं अपने आजाद जो हमारे तज्जियाकार हैं उनसे भी इस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी लूं। क्या पारा चनार के करीब अफगानिस्तान साइड से जो दाइश का असर रसूख है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पारा चनार के अंदर जो सरहद पार से लोग जो हैं वो मुलव्वस है। हालिया वाक़े को भी जो पारा चनार में हुआ उसके साथ उसको भी ये कहा जा रहा है कि ये वजूहात जो हैं वो सरहद पार से हैं। एक तो ये कि इस बढ़ते हुए असर रसूख का जो दाइश का है अफगानिस्तान में या तालिबान का है, TTP का, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को किस तरह से सिक्योर करना है और इस किस्म के वाकयात आइंदा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को अंदर से ही आपस में लोगों से लड़वाने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, इसको रोकने का एक तो तरीका ये है कि हम अपनी ट्राइबल बेल्ट के अंदर ये जो उनकी डेवलपमेंट और उनका कॉन्फिडेंस गेन करें, ताकि चूंकि आपको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और पब्लिक का कोऑपरेशन है वो मिलेगा तो आप ज्यादा मुअस्सर तरीके से अपने इलाके का दिफा करेंगे। नंबर 2 है बॉर्डर जो उनके ऊपर भी अभी जैसे अभी DGISPR ने बताया और फोटो भी रिलीज किए कि जहाँ जहाँ कुछ क्रॉसिंग प्लेसेस हैं वहाँ वायरिंग हो रही है, प्लस कुछ फोर्ट्स बन रहे हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। नंबर 3 बात यह है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो सिर्फ पारा चनार के अपोजिट नहीं, राइट फ्रॉम टॉप कुन्नड़ से लेके कुन्नड़ है, नूरिस्तान है, आपका पाक्तिया, पौक्तिका, नंगरहार और इसी तरह खोस्ट और इवन नीचे हेलमेंट जो आल्दो हमारे से मिल नहीं रहा लेकिन पीछे है, इन इलाकों ये नो गो एरियाज हैं। और ये कहने वाले ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का सिर्फ 40% कंट्रोल में है अफगान हुकूमत के, और उसमें भी 20% में जो अशरफ गनी साहब के फेवरेट्स हैं और 20% में अब्दुल्ला साहब का है। उनकी आपस के अंदर भी एक रिफ्ट है। फिर प्रोफेशनल उनकी आर्मी का एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि सबसे बड़ा ट्राइब पश्तून है लेकिन 80% नॉन पश्तून हैं इनकी फौज के अंदर। फिर ट्राइबल कल्चर है, फिर वॉर लॉर्ड्स हैं, फिर उनकी ड्रग मनी है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, मैं जो समझता हूँ, और आई एम श्योर डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर रिफत और सारे अपने रखे, सब बीमारी की जड़ अमेरिका खुद है। यानी उन्होंने अगर ये पहले यहाँ चढ़ाई की, और ये चढ़ाई इसलिए नहीं की कि अफगानिस्तान के अवाम को और उनकी ख्वातीन को हकूक दिलाने हैं या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके अपने मफादात थे। और बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड एयर बेसें बना के अभी वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते, चूंकि उनकी नजर कैस्पियन बेसन के जो तेल और गैस की खुशबू उनको आती है वो उनको हिलने नहीं देती। थैंक यू सो मच। सारी फैक्टर्स हैं जिनको हमें करना है, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाकिस्तान फाइट बैक कर रहा है जिससे सिचुएशन इंप्रूव हुई है। लेकिन हमें अमेरिका भी ये मदद कर दे कि कम अज कम इस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए अफगानिस्तान की साइड पे कुछ करें। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से, आपका मौक़िफ़ आया। जो इन्होंने बात की कि इन सारी फसाद की जड़ जो है वो अमेरिका ही है, शायद वो इधर से भी उधर से भी, इन सारी चीजों को लेते हुए जो मेरे आज के प्रोग्राम का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जब उसकी सोच की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस जगह पे वो किस तरह से प्ले कर रहा है। खलीजी ममालिक का अगर हम जिक्र करें तो अभी हालिया अरब ममालिक की जो आपस की जो ये कशीदगी थी, जो डेड लाइन थी जो कतर के साथ, वो खत्म हो गई और उसने उसको मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करने के बाद अब ये कशीदगी क्या मजीद बढ़ेगी? क्योंकि लोग भी सब ये कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे पहला विजिट ट्रंप का करना और फिर उसके बाद ये सारी सिचुएशन का डेवलप होना, तो क्या वो मुसलमानों के दरमियान रिफ्ट पैदा कर रहा है और मुसलमान भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे? क्या आप
इस हवाले से? अगर आप मुझे इजाजत दें, बहुत ब्रीफली मैं आपका जो पॉइंट था कि अमेरिका के इसमें रोल क्या हो सकता है, ये जो सीपेक के बारे में आपने कहते मैं उसकी बात करता हूँ। मैं समझता हूँ बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है और डेफिनेटली अमेरिका की इंटरेस्ट में है। अमेरिका यूज करना चाहता है इंडिया को अगेंस्ट चाइना, जो उसकी इस वक्त रोल है सीपेक के जरिए। अगर आप देखें तो पूरे खित्ते में एक इंडिया है जहाँ पे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान सीपेक के जरिए, आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड वियतनाम, और दूसरा रशिया का यूरेशियन जो इनिशिएटिव है वो अल्टीमेटली लिंक अप होना है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। दूसरा पॉइंट ये है कि मलाका स्ट्रेट के जरिए चाइना की 70% कंटेनर जो ट्रेड है वो मलाका स्ट्रेट से होती है, और चाइना को वहां से ब्लॉकेट करना अगर फ्यूचर में कभी भी चाइना, इंडिया और अमेरिका मिलकर वो कर सकते हैं उसको। तो लिहाजा इनके लिए जो बड़ी वाइटल आर्टरी जो ट्रेड की कॉरिडोर पाकिस्तान जो उनको प्रोवाइड कर रहा है चाइना को, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी क्लियर हमें सिचुएशन नजर आती है कि अमेरिका चाइना को ब्लॉक करना चाहता है। उसका जो रोल है फैलता हुआ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको रोकना चाहता है। उसको रोकने के लिए इंडिया नजर आ रहा है। अब देखिए इसके अलावा तो मुल्क है कोई नहीं, एक इंडिया बचता है जिसको आपने यूज करना है। और मेरा ख्याल है सारा जितना आपने देखा जो बेरहग हुआ वो उन्होंने जाके तो पकड़ा, उनको जफ्फी लगा ली, उसकी क्या आप मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं? कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि समझता नहीं। अब जो आपने बात की मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि वो सऊदी अरेबिया जाते हैं। $110 बिलियन की आर्म्स की डील वहां पे कंक्लूड होती है। सऊदी अरेबिया सम और दी अदर उनकी जो इंडस्ट्री है जो वेपन्स की, आर्मामेंट्स की, उसको रिवाइटलाइज कर दिया उन्होंने। $110 अरब की अगले गालिबन 10 साल में ये जो मुख्तलिफ डील्स होनी है, ये उनकी इंडस्ट्री को फिर से नई जिंदगी देगा। और अगर आप देखें तो ये एक तरह का कार्ट ब्लांश उन्होंने दे दिया सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया अपने अंदाज से अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो भी इसकी इंटरेस्ट है उसको परस्यू कर रहा है। उनका यंग प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद जो है, मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में दो तरह की ओपिनियन पाई जाती है सऊदी अरेबिया में भी और पूरे रीजन में भी। एक तो ये है कि बड़े डायनामिक है, यंग है और उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस दिए और वो अपनी मुल्क की इकोनॉमी को ऑयल से हटा के उसको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां पे प्रिवेल करता है इस रीजन के अंदर कि शायद अभी इज टू यंग, अभी उनकी सोच उतनी मेच्योरिटी की तरफ नहीं गई। जैसे एक रीसेंट एग्जांपल कतर की नजर आती है कि आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, जो आपने उनको डिमांड्स जो दी उनको, वो किसी सूरत में कतर के लिए मुनासिब उनको नजर नहीं आता कि वो उस डिमांड्स को उनको फुलफिल करें। तो डेडलॉक के बाद आप देखें कि रेक्स टिलरसन के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन कोई नतीजा खेज चीज सामने नहीं आई। पाकिस्तान ने भी अपना रोल किसी अंदाज से प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए, आर्मी चीफ के प्ले करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है ये कि वो किसी भी आउटसाइड मीडिएशन को सऊदी अरेबिया और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तुर्की ने भी कतर के अफवाज के साथ जो मशकों के बड़ी क्लैरिटी के साथ देखिए उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया हुआ है। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद भी वो मानने पे तैयार नहीं है। और जो चार्टर ऑफ डिमांड उनको दिए है कतर को, वो कतर के बस में नहीं है कि वो मान सके। अगर वो मानता है तो एक ऐसी स्टेट बन जाएगा जिसने एक तरह से सरेंडर कर दिया अपने आप को। तो मेरा ख्याल है ये अब उसी सूरत में रिजॉल्व हो सकता है। क्या कहती है? देखिए अरब लीग, अब आप देखिए अरब लीग का पाल देखिए, अरब लीग का रोल टोटली नॉन एग्जिस्टेंट है। OIC को देख लें, डेड हॉर्स की तरफ पड़ा हुआ है। कोई ऐसा इदारा नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अरब वर्ल्ड के अंदर उनकी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान में कोई डिस्प्यूट्स है और उनके दरमियान कोई डिफरेंस ओपिनियन है उसको ब्रिज कर सके। और ये मुझे तो फ्यूचर में भी कोई ऐसा रोल नहीं लगता, कोई ऐसा रोल नहीं। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि कोई मसला इनके दरमियान हल हो पाएगा? क्या कोई अरब मुल्क ऐसा है? क्योंकि जब भी सालिसी की बात करते हैं किसी को भी तो सऊदी अरेबिया की तरफ देखा जाता है, लेकिन इस वक्त तो सऊदी अरेबिया खुद एक पार्टी है, तो कौन आगे बढ़ेगा? जी देखिए, मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। देखिए दो वेरिएबल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि सऊदी अरेबिया wants to pursue a policy of domination और उसके वाले से वो जितनी भी खलीजी रियासतों हैं, खलीजी रियासतों को अपना आज़ाद मौक़िफ़ रखने की हमायत में नहीं है। और ख़ास तौर पे जो यमन के अंदर जो लड़ाई हो रही है और वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द सऊदी बैकिंग फॉर द रिजीम विच इज़ अंडर थ्रेट, तो ये मेरे ख्याल में ये एक मामला है। तो उनका ख्याल ये था
कि सऊदी हुकूमत का ये ख्याल ये था कि कतर वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसको अमेरिका के साथ भी तल्लुकात अच्छे हैं, और उनके ईरान और वो जो कुव्वतें जिनको सऊदी अपने लिए खतरे का बायस समझते हैं, हिजबुल्लाह की हुई या बाकी जो जिहादी ग्रुप हैं, तो वो ये समझते हैं कि इनकी वजह से उनको हवा मिल रही है, और वो उसके अल जजीरा को बैन करने की जो डिमांड है, जिन 13 मुतालबात का इन्होंने जिक्र किया, वो भी उसी के हवाले से उसका हिस्सा है। और सऊदी, मुझे तो समझ नहीं आती कि सऊदियों के पास हर किस्म की सिक्योरिटी गारंटी मौजूद है, लेकिन साइकोलॉजिकली दे फील वल्नरेबल। उनका ख्याल ये है कि 2011 से लेके जब तक ये अरब स्प्रिंग की ये फोर्सेस जो हैं जो उठी हैं, वो कहीं उनकी बादशाहत के खिलाफ जो है वो इन कुव्वतों की हमायत की वजह से वो उठ ना खड़ी हों। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया को भी थोड़ा सा अपना ड्रा डाउन करना चाहिए डिमांड्स के अंदर, और डिमांड्स ऐसी रखनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो कतर के लिए, क्योंकि कतर जो है वो एक छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन उसकी जो ग्लोबल रीच है एनर्जी मार्केट्स की वजह से, और वो इट्स वन ऑफ दी बेस्ट, और वो थोड़ा सा उनके अंदर एक मॉडर्निटी का भी एलिमेंट आपको नजर आता है। बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सोचना चाहिए कतर को भी, सऊदी अरेबिया को भी, दूसरे जो ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, दीगर ममालिक को सोचना तो चाहिए। क्या ये सोचेंगे? मेरे ख्याल में अगर सोचेंगे नहीं तो वो फिर जंग का खर्चा और जो कशीदगी की जो फिजा है उसमें ज्यादा इजाफा होगा, और कशीदगी इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो कि ऑलरेडी ही इतना डिवाइडेड अलॉन्ग सेक्टेरियन अलॉन्ग आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन, उससे किसी को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये यानी जो ओबामा दौर में ना कतर को जरा मिल गया, लीवे मिल गया, मतलब कतर बहुत कुछ कर रहा था अपने साइज के बहुत ऊपर जाके, वो ट्रंप के आते ही चेंज हो गई है इक्वेशन। Exactly. कतर वाले समझे नहीं अभी तक, तो वो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, फिर मामला आगे चलेंगे, वरना ये बहुत ही पेचीदा हालात हैं और कोई इसको हल नहीं कर सकता। So, आपका भी यही कहना है कि समझने को तैयार नहीं है, लेकिन समझना चाहिए अगर चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाए। क्योंकि ओबामा जो था वो ईरान को एंगेज कर रहा था, और ये जितने रिफॉर्मिस्ट लोग हैं उनको एंगेज कर रहा था। ट्रंप को उनकी कोई परवाह नहीं है, ठीक, उसने ऐलान मतलब कि जंग तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से उसने कर दिया ना, अपना वो कह दिया। ट्रंप ने अपनी ओपन ओपिनियन दे दी जनाब। ओबामा रजीम जो है वो चेंज हो चुकी है। क्या कतर को भी इसका मतलब इतना उसको अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सारा कुछ होगा? क्या ट्रंप ने ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया है कि ओबामा रजीम या वो जो कुछ कह के गए थे, क्योंकि उनके यहाँ तो फॉरेन पॉलिसीज जो मेरे ख्याल से किसी शख्स के आने से तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, या ये क्या अनफॉर्चुनेटली जब से ट्रंप आए हैं तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बैक बर्नर पे रखा। उनका जो सबसे पहला स्लोगन दिया अमेरिका फर्स्ट, उनका ख्याल था कि अमेरिका ने अपने आप को अननेसेसरीली दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, और उस वक्त लगा कि शायद बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो बात कर रहे हैं, और ये एक तरह का ड्रॉ डाउन नजर आया कि अमेरिका मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट से निकल के अमेरिका के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली देखा हमने ग्रेजुअली स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, बाकी उनके इदारे हैं जिनकी तरफ से इनपुट आया, उनकी CIA वगैरह, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो अपनी पॉलिसी को चेंज किया और एक दफा फिर से। लेकिन मुझे लगता ये है कि उसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क नहीं किया जा रहा। एक तरफ वो बयान देते हैं कतर के बारे में, जब उनको बताया गया अमेरिका जैसा मुल्क और जिसको कि बड़ा सिविलाइज्ड और बहुत ज्यादा हर लिहाज से, चाहे जमहूरियत के लिहाज से कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत आगे, क्या वो भी इतनी जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं? और जैसे अभी जनक यूम ने कहा कि वो बड़ी जो स्टेट क्राफ्ट है उससे वाकिफ नहीं है, वो एक बिजनेसमैन थे, और ना ही वो जो उन लोगों से जो इसके ऊपर एक्सपर्टीज रखते हैं उनकी राय लेना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा एक सर्कल बनाया, कोर एक ग्रुप बना के ये भी वही बात दामाद, जिसमें देखें अगर आप उन्होंने अपने दामाद को भेजा डिप्लोमेसी के लिए इस रीजन में, कुशनर को भेजा, और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने कंप्लीटली जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इवन साउथ एशिया के वाले से भी स्टेट डिपार्टमेंट को पीछे रखा, और उनके अंदर जो लोग बैठे हुए व्हाइट हाउस के अंदर, जिसमें स्टीव बैनन जैसे लोग हैं जिनकी
अप्रोच बड़ी ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की थी। आप भी अगर देखें तो अभी मुझे ये लगता है कि उनको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। अभी वो कतर को एंगेज कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया को भी वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जो जिसके अंदर रोल उनका है, मेरा ख्याल है वो जरा सा उनकी रेटरिक को टोन डाउन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जावेद जदून साहब आपका, डॉक्टर रफत साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सेनेटर साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत करना, इंटरनली भी और बाहर से भी जो जो फोर्सेस उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उसको न सिर्फ हमारी अफवाज के, न सिर्फ हमारे लीडरान ने, हमारी सियासी क़यादत ने, बल्कि आपने और हमने भी मिलकर मजबूत करना है। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह निगहबान।